Hello and good morning, friends. Welcome to the CEC EduSec Live lecture. Dear friends, as we always say that we try to bring different subjects for you so that it becomes easier for you to get in-depth knowledge on those subjects, on those areas. For the first time, we are conducting a very interesting session on cameras. Now, you would be thinking, on what part of camera do we talking about today? Dear friends, today we would be specifically talking on still photography. If you're interested in still photography, then I would suggest that this session is going to be very interesting session for you. And dear friends, I would like to tell you all that for this very discussion on still photography, we have with us in our studios Mr. Abbas Muzaffar. Mr. Abbas Muzaffar is a media practitioner since 14 years. He has produced and directed various programs for television and digital media. So dear friends, I firmly believe that he is the right person to talk on still photography. So without wasting any time, I would like to welcome our guest, Mr. Abbas Muzaffar. Thank you very much. Abbas, welcome to the EduSec lecture. Thank you. We all are very curious to know about still photography. Though we used to conduct lectures every day, but getting the other side of the production, that is about the camera, it is a very interesting topic for us, and especially for still photography, because when we talk about a video production, then the camera is the another side, is on the other side. But when we talk about particular picture, then still photography is another aspect of the production. So over to you, sir. We would like to know through you about still photography. Yes. See, I would like to sort of begin with saying that still photography, even though it has been a professional sort of medium of media for a long time. Even today, there are many career avenues available. If you understand and become a professional still photographer, there are many streams that you can explore within the purview of still photography. What I would do is that, since this is the first time that we are interacting with the students, with those who want to learn still photography, I will begin with the basic. Okay, I'll begin with the basic so that everybody goes step by step in order to learn each and every aspect in order to operate the camera, the still camera, in a rather professional manner and make a productive, constructive use of it. Or even a creative use of it. Whether you want to sort of take it up as a hobby or you would like to take it up as a career option, there are both the avenues and multiple avenues are open for you. So first thing that we would like to, that I would like to begin with is a still camera. Now, what exactly is a still camera? We need to understand. A still camera is basically a box, some would say a light tight box. Some would say a box, in which light, the entering of light is controlled by multiple features or multiple mechanism. In earlier days, what we had was an analog camera or a manual camera, what we call. So we used to load a film in it, which was both black and white and then later on color film. But today we have developed further on it. We now have digital cameras. So we don't have to sort of first shoot on a film and get a negative made out of it or a negative processed out of it, and then the negative is processed as a positive, which is your print, or there is a color transparency film which itself converts into a positive, which you put on a slide projector. In early days, many of us would remember seeing on projectors, still images on projectors. Those were color transparency films. Then, further classifying into the kind of cameras. You have amateur cameras, like the cameras which are sort of fully automatic or give you some features
to control your photography, the way you take a picture. And then you have professional cameras, so you have those small, very, very, very small micro cameras, which are completely sort of automatic. Then you have, like in early times, we had cameras called sort of, hot shot or something like that, So those were also considered to be more on automation. And then you had an SLR cameras in the manuals, which were single lens reflex, or a TLR cameras, which were twin lens reflex. In that you had two lenses. But we won't go into that because that's history, that's past. Now today you have what we call a DSLR, which is a digital single lens reflex camera. So you have one lens, and the light goes inside the camera through that, and that is how your image, get constructed. We'll get into the details stepwise. Now coming on to the another aspect of basics of photography when we are talking about is basically the most important thing is that how you control the light, the entering of light, how and what are the channels to control it. First thing is an aperture. An aperture is an opening through which it is a circular opening through which the light enters. That is one control, through by which you can control the amount of light that is entering the camera. Okay, the amount of light. Then you have shutter. Okay, shutter controls the amount of light for a duration, right? So you have maybe beginning from few seconds, you have provisions on the camera to 1/25 of the second, 1/50 of the second, and 1/125 of the second. So you can actually, by shutter you can control that for how long the light enters. With aperture you control how much the light enters. So the aperture is like is like a hole, which can be broadened or can be lessened. Okay, it is also called f-stop. In the professional terminology, it's called f-stop. Now, the third control on the camera, which controls the light, is the film speed, or the ASA. In earlier days, we had films with different ASA. ASA is a standardization by American Photographic Association, which determines that how sensitive a particular film is to the light. So basically, which means that if you have a higher ASA film, let's say 500 ASA film, that will require lesser light to register an image. But a film which has a less ASA, let's say 100 or even less, it will require more light, for the camera to register an image on that film. Today, in the digital camera mechanism, you have that feature, so you can sort of control it, which again sort of determines the controlling of light. Okay, I will talk about the effect that all these three light controlling mechanism determine, when you take a picture through a digital camera, both in the professional camera and in the amateur or a partly or a fully automated camera. First thing I talk to you about is the aperture. The aperture, the more you open it, the amount of light that enters will be more. Okay, in terms of a size, let's say in a circular sort of a sphere. The less you open, the less amount of light is going to go in. What is the impact of the aperture is that the more aperture you open, the subject which is there in your frame
Wherever you take a picture, you have a subject on which you are focusing on which is your primary subject. Then there are certain things in the forefront of it, which is called foreground. Certain things which are in the back side of it, which is called background. So the area between the foreground and the background, in between where you have your key subject, the aperture determines that how much of the things are going to be in focus. The more you open the aperture, the lesser things are going to be in focus, which is called a depth of field. A complete depth of field is going to be from the beginning of the foreground till the end of the background. So if you want to have a longer space completely in sharp focus, and you want to have all the details there in the image sharply represented, then you have to close the aperture. Now if you close the aperture, the amount of light that is going to enter is going to be less. So now how do you compensate for the light? You have a shutter. Okay. So for less light entering through the aperture, you can open the shutter for a longer period. Okay. For more light entering, you can open the shutter for the lesser period. Right. So shutter is basically for the amount of time the light is going to enter. That is determined by the shutter. And then the third control that I talked to you about is the film speed, or the ASA, which is determined or marked on the cameras. The impact, like you increase the film speed, the amount of light now you require is less. Okay, but if you increase the film speed, your picture becomes slightly lesser in detail, in the sharpness. It becomes a little grainy, so it gets a little sort of slightly sort of unclear or slightly hazy, if you call it. But some people use it for their advantage, to give it an effect of a grainy effect to the picture. So they use high speed. Otherwise, normally you put it on 100 ASA, okay, and you play between your shutter and aperture depending upon what is more important for you to control. If your subject is in motion, then you need to have shutter opening for a lesser time. Okay, so your shutter becomes more important for you. But when you need to have the area of things, longer area of the things in focus, in sharpness, then you need to close down the aperture. If you want to sort of take a close-up of a subject, it could be a person, it could be a bird, it could be a flower, it could be any object. Then, and you want everything else to sort of go out of focus. Okay, everything else to sort of blur out. You do not want detail of other things in the foreground or background. So then you open up the aperture, okay, and focus on the main subject, on which you want to keep all the sharpness there, okay, and take the picture. This brings me to the next point, which is focus, which is extremely important. When you start the camera, the first thing that you need to be absolutely sure about is the focus. Without a correct focus, your picture is a waste. Nobody will be interested in that picture, because the focus is the most important thing. So now how do you focus? If you are manually focusing it, then you have a focusing ring on the lens. So you put anything that you want, in your image, the key emphasis on the subject that you want the emphasis to be there. So you put that particular thing in the sharpest of focus. You use the focusing ring and see that that particular thing is absolutely in focus, is absolutely clear. There is no sort of distortion in it. There are different in manual focus, the provisions are there that that it shows you that when the picture comes, when that particular subject comes in the absolute clarity, or say
which has a complete absolute what you call edge sharpness, you know, it is like razor edge sharpness, you know, that you get. तो एकदम आपको उस जगह पर फोकस करना है जहाँ पर उस सब्जेक्ट पर इस तरीके से फोकस करना है कि आपका वो पॉइंट जो है या वो चीज़ जो है वो एकदम शार्प हो, एकदम सटीक दिख रहा हो, और इसमें जब आप इस जगह पर जिस पॉइंट पर फोकस करते हैं तो आपकी रेंज जो बेसिकली जो होती है वो ये होती है कि उसके पीछे का तकरीबन 2/3 जगह फोकस में होता है और उसके आगे की का 1/3 स्पेस फोकस में होता है। तो अगर आप मान लीजिए मेरी फोटो खींच रहे हैं, इफ यू टेकिंग ए स्टिल पिक्चर ऑफ मी, यू नो, you would focus, you will try to focus it on my eyes, okay? So 1/3 from the eyes is the nose tip, so and 2/3 is the ear, okay? So from nose tip up till ear, everything will be in deep focus, will be absolutely sharp and crystal clear. Then later on, अब इसमें जो एरिया है आपका आगे का और पीछे का, उसमें जितनी शार्पनेस आपको चाहिए वो आप रिप्रेजेंट करेंगे अपर्चर से। तो अगर आपका अपर्चर मान लीजिए 2 है या 2.8 है, मतलब उस एकदम ओपन है, एकदम खुला हुआ है अपर्चर, मिनिमम पर है, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे आगे पीछे फोकस में नहीं मिलेंगी। पीछे की चीज़ें जो हैं वो धुंधली दिखेंगी, आगे की चीज़ें भी धुंधली हो जाएंगी, सिर्फ मैं फोकस में दिखूंगा। तो ये आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ पिक्चर, अगर आप उस तरह की पिक्चर ही खींचना चाहते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि मेरे पीछे जो पिक्चर फोटो लगी है, पीछे की जो दीवार है या पीछे कोई चीज़ रखी हुई है, उसे लेकर के मेरे आगे जो लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें फोकस में रहें, तो आपको कम से कम एक मिड रेंज आपको चूज़ करनी पड़ेगी जो कि तकरीबन 5.6 या 8। और अगर आप एक बड़ी सीनरी की पिक्चर ले रहे हैं कहीं पर बाहर, तब आपको और क्लोज करना पड़ेगा अपर्चर, बिकॉज आप एक डे लाइट एनवायरनमेंट में है, लाइट की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इवन 22 या 18 पर अपर्चर को क्लोज कर सकते हैं, तो आपको बहुत डेप्थ मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो डेप्थ ऑफ फील्ड में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि the focal length of the lens, जब आप छोटे फोकल लेंथ पे हैं, मान लीजिए 28 पर हैं या 30 mm पर हैं या 50 mm पर हैं, तो you will get a bigger depth of field, you will get a relatively more depth of field. But when you are on a telephoto lens, or you say a higher focal length, you know, like say 100 mm or a 150 mm or a 200 mm or even more, you know, जब आप स्पोर्ट्स वगैरह में जा कर के आप किसी बहुत दूर से स्टेडियम में जहाँ पर आप बैठे होते हैं और वो कई मीटर दूर एक आदमी खेल रहा होता है, तो वहाँ पर आप टेलीफोटो लेंस आप यूज़ करते हैं जिससे आपको दूर की चीज़ जो है वो आप क्लोज़अप में ले सकें। सो देन वहाँ पर आप अगर आपने नोटिस किया हो तो ज़्यादातर चीज़ें जो बैकग्राउंड में होती हैं वो फोकस में नहीं होती हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं because of the focal length of the lens, you know. And even if you close the aperture too much, even then, you know, you will not get a lot of depth of field. So this was about the aperture and the shutter and the focus and the depth of focus and depth of field. These are the areas we have covered. Now next thing is that focal length की हम बात कर रहे थे, तो अब focal length का एक और aspect है जिससे आपको distortions मिलते हैं। जब आप छोटे फोकल लेंथ पे होते हैं, मतलब तकरीबन 18 पे या 15 पे या उससे कम पे 10 पे, तो उस लेंस को आप या उस फोकल लेंथ को आप वाइड एंगल कहते हैं। उससे भी कम पे आप जाते हैं तो वो फिश आई हो जाता है। तो वाइड एंगल में होता क्या है कि आपको आपके पिक्चर का पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाता है, विड्थ बड़ी हो जाती है, आपकी चीज़ें ज़्यादा फोकस में आ जाती हैं। मगर उसमें डिस्टॉर्शन ये होता है कि जो फोरग्राउंड में चीज़ें होती हैं
वो बड़ी हो जाती हैं, जो बैकग्राउंड में होती हैं वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं, तो वो कुछ एक अजीब सा मतलब अननेचुरल सा इफेक्ट आपको लगता है. समटाइम्स दैट इज रिक्वायर्ड. कभी हम ऐसी फोटो खींचना ही चाहते हैं कि जिसमें हमको उस तरह का डिस्टॉर्शन हो मगर एक बड़ा पर्सपेक्टिव हो. जैसे फिश आई में आप मतलब 5 या 6 फोकल लेंथ पे आप 5 mm या 6 mm फोकल लेंथ पे आप फोटो खींच रहे हैं, तो आपको एक फिश आई का पर्सपेक्टिव मिलता है, एक मछली की आंख से जैसी चीज़ें दिखती हैं, तो जो कि जिसमें डिस्टॉर्शन होता है, जो थोड़ा सा अजीब दिखती हैं, मगर उसमें आपका एरिया जो होता है, पिक्चर का एरिया जो होता है, आपका साइज जो होता है जगह का, वो सारा का सारा उसमें आपको देखने लगता है. So this is how we are learning about still photography. I hope that all the students who might be watching us right now would be benefiting from this lecture, and I would definitely say that this lecture of Mr. Abbas would be motivating you to adopt camera as their career. So over to you, sir, again. Yeah, definitely. It is a very good career option, and but I suggest that when you are entering or venturing or embarking on any career, you must the first prerequisite is that you should understand the basics. Technicalities is if you get the basics correct, then rest of the things you will learn as you sort of as you practice, and you can take further advanced tutorials later on. So right now the most important thing is that people who do not know the basic functionality of a camera, if they I hope and I believe that after going through these points and these coordinates, they would be able to understand the basic and get confident to take it up. And once they know the basic and then they handle the camera, then things are fairly different, Exactly. So then as you sort of polish your work, you step forward on your professional journey. So next thing, so I was talking about the distortion. The same distortion you get when you go on to a higher focal length. If you go on to a 200 mm or 150 mm, picture starts getting flattened. Okay. Like your background comes close to the subject, that is how it looks. Okay, say for example, if you're taking a picture of a person or of a bird, say for example, and there are buildings in the background, a bird is also very far, let's say many meters away, and the buildings are also very far, like say 300-200 meters away. And when you go on to a higher focal length because you want a close-up, आपको close-up चाहिए, आप और zoom in करोगे, बड़ी focal length पे आप जाओगे 200 mm, 300 mm, sorry, तो आपकी जो पीछे जो बिल्डिंग है उस बर्ड के, जब वो फाइनल पिक्चर होगी वो लगेगा कि वो बहुत नजदीक है, वो उतनी दूर नहीं. तो वो एक तो दोनों एंड पे डिस्टॉर्शंस हैं. वो एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा. तो इस तरह का डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा तो आप उसको कैसे यूज करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है. कॉन्टेक्स्ट ऑफ शटर स्पीड is in the perspective to the motion. Motion both when the camera person is in the motion and the subject is in the motion. Okay, so for that, for both of that, the shutter speed plays a very vital role, very important role. If you are in motion, you have to determine that how fast you are. Let's say if you are moving at if you are in a train, okay, or you are in a car and you are moving at around say 50 kilometers an hour, okay, आपके स्पीड मीटर पे आपको पता चल जाता है कि आप कितनी स्पीड पे, या एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया हो जाता है कि 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, 100 की स्पीड पे चल रहे हैं. तो आप अगर कोई पिक्चर उस टाइम खींचेंगे जो कि स्लो शटर स्पीड पे होगा, तो उस पिक्चर में शेक आएगा, वो पिक्चर क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि शटर जितनी देर तक खुला होना चाहिए उसकी स्पीड जो है वो आप जिस चीज पर ट्रैवल कर रहे हैं
उसकी स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उससे कम देर शटर खुला होना चाहिए. सो इफ़ यू आर मूविंग लेट्स से एट अ 50 किलोमीटर एन आवर की ऑफ स्पीड, then ideally you should keep it double, you should keep it at about 1/100th of the second, the shutter speed, so that you will avoid any shakes, any blurs in the picture. Okay, your picture will be fine. Or even more, if you want to be even safer, you can go on a higher shutter speed and compensate the light. शटर की वजह से आपको लाइट कम देर के लिए मिलेगी, तो आप उसको कॉम्पेंसेट कर लें अपर्चर से. आप उसको अपर्चर में आपको मतलब अगर डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप उसको फिर आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा फिल्म स्पीड से, जो ASA है. उसके अलावा कुछ डिजिटल कैमरा जो कि प्रोफेशनल है उनमें आपको गेन का भी ऑप्शन मिलता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी लाइट जो एंटर हो रही है कैमरा में और उसको बढ़ा देता है. मगर उसको बढ़ाने के साथ उसका डाउन साइड ये है कि आपको नॉइज आने लगता है, तो वो नॉइज जो है उस पिक्चर को कॉम्प्रोमाइज करता है, उस पिक्चर को उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है. मगर अब आप ये समझें कि ये सारे रूल आपको इसलिए बताए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि इन चीजों को आप मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप अपनी एडवांटेज पे कैसे यूज कर लेते हैं. That makes you a photographer, that makes you that makes you differentiate from an amateur and a professional. जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है, जो ये सारी चीजें समझता है, जिसको ये सारी चीजें पता होती हैं, वो उसको इस तरह से यूज करता है कि वो प्रॉब्लम्स भी अच्छी लगने लगती हैं. और वही है प्रोफेशनलिज्म एक फोटोग्राफर का, कि आपकी पिक्चर ग्रेनी है मगर अच्छी लग रही है. आपकी पिक्चर में मान लीजिए कुछ मोशन है या कुछ नॉइज है मगर वो अच्छी लग रही है. आपकी पिक्चर में डिस्टॉर्शन है लेंस की वजह से या फोकल लेंथ की वजह से मगर वो अच्छी लग रही है. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उस डिसएडवांटेज को, उस एडवर्सिटी को आप कैसे इस तरह से यूज करते हैं कि वो आपकी पिक्चर को चार चांद लगा दे, आपकी पिक्चर को और बढ़िया बना दे, आपकी पिक्चर और अच्छी देखने लगे. तो शटर स्पीड, एक चीज हम ये बता रहे थे कि जब हम खुद मूवमेंट में हैं, हम जो कैमरा लेकर के फोटो खींच रहे हैं, हम खुद मूवमेंट में, हम कार में हैं या हम ट्रेन पर हैं या हम किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं, और तो हमको एक अंदाजा करना होता है कि ये चीज तकरीबन कितनी स्पीड पे मूव कर रही होगी. उस हिसाब से हम शटर स्पीड, अगर वो चीज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है तो हम 1/100 कम से कम शटर की स्पीड को रखें, कम उससे ज्यादा रखें, मतलब 1/50 के से ज्यादा रखें, ताकि वो उस पिक्चर में कोई शेक ना आए, वो पिक्चर हिले नहीं, वो पिक्चर खराब ना हो. और हम उस ज्यादा से ज्यादा रख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमको अपर्चर और फिल्म स्पीड के डिपार्टमेंट में हमको हमारी क्या रिक्वायरमेंट है. अगर हमको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए ज्यादा तो फिर हमको शटर एक लिमिट तक ही हम शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे शटर स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे लाइट का अंदर आना जो है उसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा. अब दूसरा साइड इसका ये है कि जब कोई चीज मूव कर रही है और आप स्टैटिक हैं, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का अंदाजा करना होता है कि वो चीज जो है वो कितनी स्पीड पे तकरीबन चल रही है. तो आप उस हिसाब से, अगर मान लीजिए कि वो 50 की स्पीड पे चल रहा है या 60 की स्पीड पे चल रहा है, तो आपकी शटर स्पीड फिर अगेन उससे ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो वहां पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जहां पर आप उसकी फोटो खींच रहे हैं वहां पर वो फ्रीज हो जाए, वहां पर वो जम जाए, मतलब वहां से जरा सा भी उसमें कोई जुम्बिश नहीं हो, मतलब जरा सा भी हिले नहीं इधर उधर. तीसरा पार्ट ये है कि आप दोनों मूव कर रहे हैं, मतलब आप भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे ऊपर, आप मान लीजिए कार पे बैठे हैं और दूसरा बंदा भी कार पे बैठा है या मोटरसाइकिल पे बैठा है या कोई चिड़िया उड़ रही है या कोई खेल रहा है, तो तब भी आपको शटर स्पीड इस तरह से डिटरमाइन करनी है कि आपकी शटर इतनी देर तक ही खुला होना चाहिए
कि जो उसकी और आपकी स्पीड दोनों की स्पीड से कम हो, मतलब आप दोनों में जिनकी सबसे ज़्यादा स्पीड है उससे कम हो, तो उतने टाइम के लिए खुला होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आप 50 की स्पीड मूव कर रहे हैं, वो 100 की स्पीड मूव कर रहा है, तो आप फिर सीधे सीधे ट्राई करिए कि उससे ज़्यादा वाला ऑप्शन आप चूज़ करिए, मे बी 1/200 और 1/250th ऑफ द सेकेंड आप चूज़ करिए, या 1/500th ऑफ द सेकेंड आप यूज़ करिए। बट देन आपको लाइट कॉम्पेंसेट कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए पिक्चर को रजिस्टर होने के लिए, वो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा अपर्चर से। या फिर अगर वहाँ से भी कॉम्पेंसेट नहीं हो रहा है तो फिर अपर्चर के बाद आपने पूरा अपर्चर खोल दिया, उसके बाद भी आपको लो दिखा रहा है एक्सपोजर, मतलब दिखा रहा है कि आपको अभी भी और लाइट चाहिए, तो आपको फिल्म स्पीड से करना पड़ेगा। वहाँ से भी नहीं हो पा रहा तो फिर आपको गेन से करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे वो आपको मैंने बता दिए हैं, उसको कैसे यूज़ करना है ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब शटर स्पीड और मोशन फोटोग्राफी की बात हो गई, तो इसमें जो एक प्रॉब्लम जो आती है वो है कि अगर इसमें हम ज़रा सा भी चूकते हैं तो वी गेट ब्लर्स, हमारी पिक्चर थोड़ी ब्लरी हो जाती है, वो शार्प नहीं रहती है। अगर हमारा कैमरा भी हिलता है तो भी हमारी पिक्चर ब्लरी हो जाती है, थोड़ा शेक हो जाता है, और वी कॉल इट अ कैमरा शेक। Now in order to minimize this, another thing that we use is a tripod. शुरू में जब आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जानकार जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, anybody who knows still photography, he or she will tell you that always use a tripod. Don't try to use a camera handheld, मतलब अपने हाथ के ऊपर आप उतना भरोसा ना करें, बल्कि एक स्टैंड, एक ट्राइपॉड यूज़ करें, जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ईजी हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप बहुत कम शटर स्पीड पे आप फ़ोटो खींच रहे हैं और आपने ट्राइपॉड पे कैमरा रखा हुआ है, तो कैमरा में की चांस हिलने की बहुत मिनिमम हो जाती हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड पर आप खींच रहे हैं फ़ोटो, और आपको लगता है कि आपकी उंगली से जो क्लिक का बटन है जिससे आपकी फ़ोटो खींचेगी, वो भी दबाने से आपका कैमरा हिल सकता है, तो एक चीज़ होती है टाइमर कैमरा में, आप उसको टाइमर पे सेट कर दें तो आपको हाथ से टच भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब 10 सेकंड का टाइमर होता है, 20 सेकंड का टाइमर होता है, अलग अलग कैमरा में अलग अलग वो हैं कि आपने टाइमर पे आपने सेट कर दिया है 20 सेकंड के लिए। अब वो 20 सेकंड तक उसकी लाइट ब्लिंक करेगी, उसके बाद आपने बाकी सेटिंग्स अपनी कर ली हैं, शटर की सेटिंग कर ली है, अपर्चर की सेटिंग कर ली है, आपने फोकस अपना देख लिया है, तो वो अपने आप फ़ोटो को क्लिक कर देगा, तो आपका वो भी चीज़ बच जाएगा। पहले और अब भी कुछ लोग ऐसा यूज़ करते हैं कि टाइमर की बजाय वो एक एक्सटर्नल गैजेट यूज़ कर लेते हैं फायर करने के लिए, कैमरा को क्लिक करने के लिए, विच इज़ कॉल्ड अ शटर रिलीज और अ बल्ब। तो वो गैजेट होता है, उससे अटैच होता है, उससे आप जो है उसको टच करते हैं, तो आपको कैमरा को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर वो सारी चीज़ें लेटर स्टेज की हैं, जब आप एक लेवल तक आप सब चीज़ों को समझ जाएं। और अगर आपको ज़्यादा देर का शटर खोल करके फ़ोटोग्राफ खींचनी है और ज़्यादातर आपको ऐसे ही करना है, तब आपको इस तरह के गैजेट्स के बारे में जानकारी लेनी होगी और उसको यूज़ करना होगा। अब दूसरी चीज़, जब मैं ट्राइपॉड की बात कर रहा था, तो ट्राइपॉड में भी इनिशियली हम एडवाइस ये करते हैं कि आप बहुत हल्का ट्राइपॉड ना यूज़ करें, बिकॉज अ वेरी लाइट ड्यूटी ट्राइपॉड अगेन हैज़ सम प्रॉब्लम, यू नो, इट कैन ईजिली फॉल, और एक बार ट्राइपॉड गिरेगा तो आपका कैमरा डैमेज हो जाएगा। आपकी फ़ोटो तो ख़राब होगी ही होगी, और कैमरा डैमेज इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो आप और कैमरा गिरेगा क्यों? आप कहीं पर फ़ोटो खींच रहे हैं या आपने कैमरा रखा, आप कहीं इधर उधर देखने लगे, आपका हाथ लग गया, कुछ लग गया, वो कैमरा धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि ट्राइपॉड आपका इतना लाइट वेट है।
बगल से कोई गाड़ी बहुत तेजी स्पीड से चली गई तो उसकी सिर्फ वाइब्रेशन से गिर जाएगा। आप फ्लाईओवर के ऊपर अगर कभी जाकर के खड़े हों थोड़ी देर, तो आप देखेंगे कि अगर आप हल्का ट्राइपॉड रखेंगे वहां पर, तो फ्लाईओवर में ट्रैफिक की वजह से ही हैवी ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से भी ट्राइपॉड शेक होकर के गिर सकता है। हैवी ट्राइपॉड का यही एडवांटेज है कि अगर आपका ट्राइपॉड हैवी है, या आप उसमें अगर आपके पास हैवी ट्राइपॉड नहीं है तो आप उसमें एक वेट रख सकते हैं। आप उसका जो पेडेस्टल है, नीचे का जो स्टैंड है, उसके साथ आप किसी सैंड बैग्स आते हैं, आप उसको रख देंगे तो वो एकदम ज़मीन से जमा रहेगा, हिलेगा नहीं। अगर आप सैंड बैग भी आपको नहीं मिलता है तो आप वहीं पर कोई भारी सी चीज़ उठा करके उसके साथ बांध सकते हैं, लटका सकते हैं, कोई ब्रिक, कोई ईंटा, कोई स्टोन या कोई और वेट जो कुछ आपके पास है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर ट्राइपॉड स्टर्डियर, heavier, so that it does not fall, your camera remains safe and it does not get damaged. तो ये बात हो गई कि लाइट ट्राइपॉड और हैवी ट्राइपॉड के बीच में फ़र्क, और इसको कैसे आप को सिचुएशन देख करके यूज़ करना है। जब भी कभी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, तो वहाँ पर तो पहले से ही तैयार होकर के जाएं आप। यू टेक अ हैवी ट्राइपॉड और यू टेक सम वेट विच यू माउंट ऑन द ट्राइपॉड, जो आप ट्राइपॉड से बांध दें ताकि आपका ट्राइपॉड स्टेडी रहे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, विच इज शूटिंग इन द डे। अब हम या दिन में फ़ोटो खींचते हैं या रात में फ़ोटो खींचते हैं। दिन में जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं जो हमारी नेचुरल लाइट है, जो सूरज से आ रही है, चारों तरफ है, या जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं लाइट, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। अब जब हम दिन में शूट करते हैं तो एक कैमरा में एक प्रोविज़न होता है, हर डिजिटल कैमरा में आजकल प्रोविज़न होता है ऑफ अ वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में ऑटोमेटिक सर्टेन मोड्स हैं। एक मोड आपका होगा जिसमें डे लाइट का कोई निशान बना होगा, सन बना होगा या कुछ इस तरीके से होगा। एक होगा जिसमें क्लाउडी होगा, क्लाउड्स बने होंगे। एक होगा जिसमें लाइट बल्ब बना होगा, मतलब वो रात के लिए है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है। एक डिजिटल कैमरा को बेसिकली उसको मतलब कैमरा की जो इंटरनल सेटिंग है वो उसको ये बताती हैं कि ये कैमरा दिन में फ़ोटो खींच रहा है या रात में फ़ोटो खींच रहा है। तो उस हिसाब से कैमरा अपना कलर टेम्परेचर डिसाइड करता है। कलर टेम्परेचर, हर लाइट का अलग कलर टेम्परेचर होता है। दिन की लाइट का कलर टेम्परेचर अलग होता है। क्लाउड में जब के बीच में जब सन होता है तो कलर टेम्परेचर अलग होता है। और जो रात की लाइटें हैं या जो बल्ब है उसका कलर टेम्परेचर अलग होता है। जो टंगस्टन का बल्ब होता है पुराना, जो हमारा घरों में लगा होता था, ट्यूब लाइट का कलर टेम्परेचर अलग होता है। और CFL बल्ब्स जो होते हैं उनका कलर टेम्परेचर अलग होता है। LED बल्ब जो होते हैं, तो हर लाइट का एक कलर टेम्परेचर होता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप मान लीजिए आपका कैमरा ऐसी सेटिंग पर है वाइट बैलेंस की कि ऑटोमेटिक सेटिंग पर, एक उसमें नॉर्मल सेटिंग भी होती है कुछ कैमरा में जिसमें आप खुद वाइट बैलेंस कर सकते हैं, उसका मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा। तो जो ऑटोमेटिक सेटिंग्स होती हैं 4-5 कलर टेम्परेचर सेट करने के लिए, अगर आपने उसको रात वाली सेटिंग पे कर दिया और आप दिन में फ़ोटो खींच रहे हैं, आप दिन में फ़ोटो खींच रहे हैं और आपने उसको रात वाली सेटिंग पे कर दिया, तो उस पिक्चर पे जो है वो एक दूसरे कलर की कास्ट आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आप ने दिन की सेटिंग कर दिया और रात में आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो उस पर एक कलर का एक दूसरे कलर का एक कास्ट आ जाएगा, आपकी पिक्चर नेचुरल नहीं लगेगी। तो वो डे लाइट का कास्ट आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, टंगस्टन लाइट का कास्ट आएगा तो वो ऑरेंज हो जाएगी पिक्चर। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपको मैनुअल वाइट बैलेंस का ऑप्शन नहीं दे रहा है कैमरा, तो आप दिन में जब फ़ोटो खींचें तो उसको दिन वाली लाइट की सेटिंग पे आप रखें,
जहाँ पर सन का निशान बना हुआ है या इस तरह की का कोई निशान है जो दिन बता रहा है। अगर क्लाउडी है तो आप उस पर रखें, तो आपको उससे फ़ायदा ये होगा कि उस लाइट में जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं आपको नेचुरली वो वैसी ही दिखेंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने उसको वहाँ पे नहीं रखा तो वो चीज़ें जो हैं वो उस नेचुरल नहीं दिखेंगी। अगर आपके पास कलर टेम्परेचर का या वाइट बैलेंस का मैनुअल ऑप्शन है कैमरा में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मतलब मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसको यूज़ करें। ज़्यादातर हम वीडियो में उसको यूज़ करते हैं, मगर अब स्टिल के कैमरा में भी ये प्रोविज़न आ गए हैं जो थोड़ा सा प्रोफेशनल डिजिटल SLR कैमराज हैं उनमें ये ऑप्शन आ गए। तो उसमें आप करते क्या है कि आप मान लीजिए कि जहाँ पर भी आप फ़ोटो खींच रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं उसके करीब या उसकी ही लाइट में, जैसी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उसी लाइट में के सामने आप एक रेगुलर वाइट पेपर या वाइट कोई भी चीज़, वाइट शर्ट किसी ने पहनी हो या वाइट थर्मोकोल की शीट हो, उसको कैमरा के सामने रख करके और फिर कैमरा का फ्रेम उस पर जूम इन करके क्लोज करके और उसका वाइट बैलेंस ले लेंगे तो वो उसमें ये होगा कि कैमरा जो है उस गिवन लाइट में एक वाइट सरफेस को एज अ वाइट देख रहा है। तो जब वो वाइट को वाइट देखेगा तो वाइट जो है, जैसा कि आप लोगों ने मतलब अपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि वाइट जो है वो सारे कलर का एक स्पेक्ट्रम है। तो अगर वो कैमरा वाइट को वाइट देखेगा तो फिर वो सारे कलर जो उस लाइट में उनको उसी तरीके से देखेगा जैसे कि वो नेचुरली हैं। उसी तरीके से अब मतलब जब हम डे में शूट करने की बात कर रहे थे तो उसमें भी डिफरेंट लाइट कंडीशन में जब आपके सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो सबसे बढ़िया सिचुएशन है, उसमें आप फोटो खींचते हैं। अगर सब्जेक्ट के पीछे से लाइट आ रही है तो उसको आप वो बैक लाइट हो जाती है और वो उससे सामने का सब्जेक्ट जो है वो डार्क हो जाता है। इसीलिए स्टिल कैमरा में जो डिजिटल कैमरा हैं उनमें एक जो डिसएडवांटेज है वो ये भी है जिसको हमें समझ करके और उसका सलूशन ले करके फ़ोटो खींचना चाहिए। वो ये है कि जब स्टिल कैमरा को पे हम अभी फोकस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद दिलाता चलूँ क्योंकि लाइट की बात आ गई कि जब हम फोकस करते हैं तो उस फ्रेम में जिस फ्रेम की आप फोटो, जिस फ्रेम की आप इमेज कैप्चर कर रहे हैं, तो व्हेन यू फोकस इट द कैमरा फोकसेस ऑन द ब्राइटेस्ट स्पॉट। जो सबसे ज़्यादा जो ब्राइट या चमकदार दिखने वाला पॉइंट होगा वो कैमरा वहीं पर फोकस करेगा। तो होगा क्या कि आपको मेरी फ़ोटो खींचनी है और पीछे कोई सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई है, वो फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो मैं शार्प नहीं आऊँगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास मैनुअल प्रोविज़न है फोकस की तो आप उसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी कोई गलती आपका कैमरा नहीं करेगा और आपकी फ़ोटो वैसी आएगी और फोकस में आएगी जैसे कि आप चाहते हैं। बिकॉज कैमरा की प्रोग्रामिंग इस तरीके की होती है डिजिटल कैमरास की कि वो फोकस करते हैं जो भी ब्राइटेस्ट स्पॉट उनको दिखेगा, जो सबसे सफ़ेद चीज़ दिखेगी, जिस पर सबसे ज़्यादा रोशनी होगी, वो उस पर जा कर के फोकस कर देगा। क्योंकि वो मशीन है, उसको एक प्रोग्रामिंग दी हुई है, उसको सिखाया गया है कि इस तरीके से करना है। आपको करना क्या है कि आप मैनुअली फोकस करें तो आपकी पिक्चर 100% क्लियर होगी। आपसे को मैंने बताया कि जब आप लाइट आपके सब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रही है, आइडियल सिनारियो ये है कि लाइट जो है वो आपके कैमरा के ही डायरेक्शन से आ रही हो। तो यहाँ पे आपका कैमरा है, सामने की आप फोटो खींच रहे हैं, लाइट पीछे से आ रही है, ये एकदम आइडियल सिनारियो है एक फ़ोटो खींचने का, जिसमें आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी, आपको सब कुछ आप फोकस कर सकते हैं, आप अपनी इमेज का शटर अपर्चर सब कंट्रोल कर सकते हैं। जब लाइट सामने से आ रही है तो फिर प्रॉब्लम है, वो अगेंस्ट लाइट सिनारियो हो जाता है। अब उसमें ये है कि अब मान लीजिए कि आप पहले तो आपको देखना है कि आप अगेंस्ट लाइट ना हो, आप जो लाइट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन से आप फ़ोटो खींचें। अगर आपकी मजबूरी है, आप वो नहीं कर सकते हैं, आपको अगेंस्ट लाइट से ही खींचना है,
तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक किसी चीज़ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब लाइट हमारी तरफ आ रही है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि लेंस में लाइट ना हिट करे, क्योंकि कैमरा का लेंस जो है वो ग्लास का होता है और हालांकि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिससे वो डायरेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, मगर उसके ऊपर चाहे तो किसी चीज़ से शेड कर दें या उसके आगे एक हुड लग जाता है वो लगा सकते हैं, क्योंकि कैमरा में के ऊपर अगर एक भी लाइट की किरण अगर आकर के लेंस पे हिट करेगी तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आपकी फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो वो फ़ोटो को ठीक रखने के लिए आपको ये देखना है कि कैमरा के लेंस पे के ऊपर लाइट नहीं हिट कर रही है या कैमरा के आसपास कोई मेटल ऐसा नहीं है जिस पे लाइट हिट कर रही है, क्योंकि वो फ़ोटो को ख़राब कर देगा। वो फिर आपका रिफ्लेक्ट करके लाइट अंदर कैमरा के जाएगी और वो पूरा चारों तरफ फैल जाएगी। आपको क्या करना है कि अगर आप अगेंस्ट लाइट सिचुएशन में हैं तो आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके लिए आप एक रिफ्लेक्टर यूज़ कर सकते हैं या आप लाइट यूज़ कर सकते हैं या फ्लैश यूज़ कर सकते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर लाइट थ्रो करने के लिए। फ्लैश के बारे में आप ये समझ लीजिए कि फ्लैश आप दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो आप स्ट्रेट जिस सब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं उसके ऊपर आप स्ट्रेट ऐसे फ्लैश, ये कैमरा रखा हुआ है, ये फ्लैश है, ये कैमरा का लेंस है, ये फ्लैश है, ऐसे लाइट आपकी जाती है सामने उसके ऊपर और वो पूरी स्प्रेड होकर के मतलब चारों तरफ फैल जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब चारों तरफ हर जगह पर लाइट पहुंच जाएगी। फ्लैश का एक स्ट्रेट फ्लैश का एक डिसएडवांटेज ये है कि हार्ड रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर देता है पीछे। अगर पीछे बैकग्राउंड बहुत क्लोज है तो हार्ड रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगा। चेहरे के जो कंटूर्स हैं, जो आपका मतलब आंख थोड़ी अंदर है, नाक थोड़ी बाहर है, तो इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो एकदम मतलब डायरेक्ट लाइट पड़ेगी और नज़दीक से अगर पड़ेगी तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर डार्क आ जाएगी या इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। रात में अक्सर आप देखते हैं कि जब किसी फेस के ऊपर आप फ्लैश मारते हैं तो आईज़ रेड हो जाती हैं, जो थोड़ी डरावनी सी लगती हैं। वो बेसिकली होता क्या है, उसमें होता ये है कि आपने बहुत करीब से लाइट मारी है तो आपकी आँख के अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखने लगती हैं और वो इतनी बारीक होती हैं, इतनी डेलिकेट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो एकदम लगता है कि जैसे एक ब्लड का स्पॉट है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन लेटर ऑन करेक्ट व्हेन यू आर एडिटिंग द फोटोग्राफ। There is a provision to do a color correction, to remove the red eyes. On the camera also it is given. You can do it on the when you take the picture on the post production. But the best way is that you take the flash at a little distance. But again, the flashlight has a limitation. It cannot go beyond a certain distance. So it goes up till about few meters, say 5-6 meters. It doesn't travel much beyond that. तो आपको फ्लैश के साथ लिमिटेशन ये है कि आपकी लाइट बहुत दूर तक नहीं जाएगी। तो फिर अगर आपका सब्जेक्ट बहुत दूर है तो फिर आपको कुछ और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ लाइट उसके पास लगानी पड़ेगी या जो है वो फ्लैश का एक मल्टीपल फ्लैश का भी एक यूज़ होता है कि आपने एक फ्लैश उस सब्जेक्ट के करीब रख दिया और वो उसके साथ जो है वो ब्लूटूथ से या इंफ्रारेड से आप कनेक्टेड है या एक वायर से कनेक्टेड है, तो जब आप कैमरा यहाँ फायर करेंगे तो साथ में वो फ्लैश फायर होगा। फ्लैश यूज़ करने के लिए आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि आपका शटर स्पीड जो है वो बहुत तेज़ नहीं हो सकता है। अगर आपने 1/125 या इस स्पीड पे आप फ्लैश यूज़ करेंगे तो फ्लैश की लाइट थोड़ी पार्टली होगी, तो एटलीस्ट आपका जो है वो शटर 1/60 या उससे कम पर होना चाहिए अगर आप फ्लैश यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो वो फ्लैश, जब तक वो फ्लैश लाइट फ्लैश की पहुंचेगी उससे पहले शटर खोल के बंद हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वो आपकी पिक्चर वैसी रहेगी। दूसरा तरीका फ्लैश का ये है कि आप फ्लैश को अगर आपको लग रहा है कि फ्लैश बहुत नज़दीक है और इससे जो है शैडोज़ बन जाएंगी चेहरे के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप बाउंस कर सकते हैं। अगर वहाँ पर जो छत है
वो वाइट है पेंट की हुई, मतलब जो ऐसा सरफेस है जो बहुत लाइट रिफ्लेक्ट करे। डार्क होगा तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अगर लाइट होगा वाइट है तो आप उस पर, आप बजाय फ्लैश सामने मारने के आप सीलिंग पे मारिए, वो बाउंस होकर के आएगा। और आप शटर थोड़ा ज़्यादा देर के लिए खोल करके रखिए तो वो लाइट जो है उसको पूरा टाइम मिल जाएगा जा करके बाउंस होकर के स्प्रेड होने में। So keep it for less than 1/50th of the second, less than that. Let's say 1/25 of the second or 1/30 of the second, or less than 1/50. तो आपको इनफ टाइम फ्लैश को मिल जाएगा लाइट को पूरी तरीके से अपना एक्सपोजर दिखाने के लिए। और उसका एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज ये भी है कि उससे कोई हार्ड शैडोज नहीं क्रिएट होंगी, क्योंकि फ्लैश जो है, फ्लैश की लाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है। आप फ्लोर से भी फ्लैश की लाइट को बाउंस कर सकते हैं। अगर फ्लोर डार्क है तो आप फ्लैश जो है उसको फ्लोर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, मगर वो कैमरा के ऊपर से तो करना मुश्किल होगा। इसलिए फ्लैश अगर आपका सेपरेट है, कैमरा सेपरेट जगह पर है, मगर दोनों सिंक्रोनाइज है, दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है, जो कि आजकल तरीके हैं जो कि ब्लूटूथ से भी हो जाता है, इंफ्रारेड से भी हो जाता है और कॉर्ड से भी हो जाता है, तो वो अलग जगह से फ्लैश बाउंस हो जाएगा। पहले जो है लोग एक कोऑर्डिनेशन करके मतलब काउंट करके 1 2 3 फायर, दोनों एक साथ, मतलब वो कैमरा भी क्लिक करते थे, फ्लैश भी करते थे, तो कई बार करते थे ताकि एक ना एक बार तो सही हो ही जाए, तो बैकअप के लिए वो इमेज रहती थी। बाकी आप किसी और सरफेस, मान लीजिए आपकी छत भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है लाइट, आप की सीलिंग, आपकी फ्लोर भी पे भी रिफ्लेक्टेंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सैटिन का कपड़ा ले सकते हैं, साटन जिसको आप बोलते हैं, उसको अपने कैमरा के साइड में रख करके उससे बाउंस कर सकते हैं फ्लैश को। आप थर्मोकोल की शीट रख सकते हैं, उससे बाउंस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे उस तरफ को, उससे कर सकते हैं। फ्लैश के को डायरेक्ट जब आप मार रहे हैं तो उसकी भी लाइट सॉफ्ट करने के लिए आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं उसके आगे, ताकि वो एकदम हार्श लाइट ना जाए। आप गेटवे पेपर आता है जो ट्रांसपेरेंट सा होता है, उससे लाइट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपके कपड़े आते हैं, स्किमर के कपड़े आते हैं, सैटिन आता है, उसके थ्रू आप मार सकते हैं। तो उससे ये होता है कि लाइट जो है वो बहुत हार्ड शैडोज नहीं क्रिएट करती है और वो पूरी इवनली स्प्रेड आउट हो जाती है। So this is up till the use of the flash. Next time we'll take it forward from here. अभी आपको बेसिक जो है वो जो चीज़ें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट बतानी थी वो ये थी कि लाइट को आप कैमरा के अंदर एंटर होने के लिए किन किन मैकेनिज्म से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको फोकस कैसे करना है, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बता दिया गया, आपको शटर के बारे में बता दिया गया। अब उसके बाद आपको डे लाइट में आपको वाइट बैलेंस के बारे में बता दिया गया, कलर टेम्परेचर के बारे में बता दिया गया, आपको फ्लैश का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बता दिया गया। इन सारी चीज़ों से आप अपनी इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें और फोटोग्राफी अपनी शुरू करें। मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है आपको to pick up your camera and start taking pictures. And there are a lot of things, which you will find out and which you will learn as you, because this is a practical medium, this आपको कितनी भी थ्योरी हम बता दें, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप जो है उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और तब तक आप उन चीज़ों का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। Yes. With this note, thank you, sir. Thank you so very much. As you rightly said, that this could be a very good lesson to the beginners who want to start, or all those who are already into profession and they make lots of mistakes while handling with the camera. As we are short of time over here, just want to know, can we define camera handling is both both art and science together? Yes, it is very much science. It is pure science. It is based on based on physics and chemistry. You learn about the optics, the lenses, the light, the characteristic of light, the color temperature, the creation of the image. So it is both physics. It is pure science. It is pure science in terms of in terms of the mechanism. The camera is pure science, but taking picture is art.
I would like to say that. But a person who's coming from a science background, who has a knowledge of optics, who has a knowledge of physics and chemistry both, will be able to pick it up faster. Will be able to understand things, more reasonably and objectively. But that should not discourage people who are coming from non-science background, because eventually it is all art. Finally, the image that you get, is what matters. आपकी पिक्चर जो है फाइनली वो मैटर करती है. आपने सारे फिजिक्स के लॉज लगा करके खींची है या जो है वो बाय चांस खींची है, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे. Bilkul. And as well as I would like to quote in between, as you yourself explained in the lecture, that how important it becomes to handle a camera. You need to make it as your third hand. Yes. Because one is involved in taking a picture and applying the mechanism also and applying the creativity also. One should not forget that he is handling the part of his own body. Yes, absolutely. It becomes an extension of you. It is very much an extension of you, both physically and intellectually, because physically in terms of the controls and intellectually in terms of your thought, so and it all gets synchronized, and that is where you achieve result when the physical energy synchronizes with the intellectual energy, and you strive towards creativity, is where you get the perfect result. So I would suggest all the students who might have watched us right now with the help of this EduSet lectures. Dear friends, this is not the last point, or this is not only the crux of the entire camera handling or practicing camera, practicing still photography. You need to learn more, and because you need to learn more and more, for that we promise that we would be conducting more session with Mr. Abbas Muzaffar, so that we could get in-depth knowledge, we could get all the technicalities while handling with the camera. And I believe that from now onwards you would be thinking that you have a better career option for you, and in our later stages also we would be discussing on to where one could reach after learning the camera. So dear friends, if you want to access this particular lecture, then I would like to tell you all that you have more options, like we are going to upload this lecture on YouTube for you, so that it becomes easier for you to see this lecture the number of times you wanted. And afterwards, if you feel that you have missed certain point, or if you have any query, then you can mail us at info.cc@nic.in. We would love to solve your queries the next time when Mr. Abbas Muzaffar visits our studio. Till then, take care, goodbye. We would be meeting again very soon. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you very much.